Hello and welcome. This is the second video regarding the ejectment of tenant. Is one of the whenever you are studying any rent law, one of the foremost thing that comes into your mind is how a tenant is ejected when because most of times even being a lawyer आपसे यही पूछा जाता है ना हमेशा कि किराएदार है उसको कैसे निकाला जाए, तो क्या तरीका कार क्या है। तो ये 13 जो है वो ए और 13B, इसमें हम देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन है और यहाँ पे टेनेंट के फिर राइट्स क्या हैं। हमने टेनेंट के राइट्स को भी देखना है कि वो उसके राइट्स जो प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेट्स स्टार्ट। Section 13A also deals with some of the situations where landlord may seek ejectment of tenant, especially in cases where landlord has died, his widow or minor children, if he is a salaried employee and has retired or due to retire within 6 months. So here there are just two very special cases. If the landlord has died and there is his widow or any of his minor child, or in case of if there was a landlord was a lady, then of course his husband and minor children. And if the guy was a salaried person and he's going to be retired within next 6 months or he has already retired, then in these two cases a notice for ejectment to tenant for resident building, we are just talking about resident building here, can be served explaining the personal need to use such building and to vacate the same within 2 months. So 2 months notice has to be served. So minimum duration is 2 months. Such right of ejectment is also available to spouse or minor child of salaried person. So not only a dead person, देखिए ना, जो इंसान मर गया तो उसके तो ज़ाहिर बात है जो पीछे लीगल हेयर है वही करेंगे, लेकिन जो सैलरीड पर्सन होता है तो हो सकता है उसकी ट्रांसफ़र किसी और जगह पे हो तो वो खुद ना आ सकता हो, तो उसके भी जो स्पाउस है या माइनर चिल्ड्रन है वो कर सकते हैं। In case of landlord being landlord of more than one residential building, whether or not in the same locality, he may get his application approved only in respect of one such building. अब देखना, उसके अगर 2-3 बिल्डिंग्स हैं रिहायशी, उसके घर हैं, तो वो कहे जी कि मैं रिटायर हो गया हूँ या मैं रिटायर होने वाला हूँ, या इन केस ऑफ डेथ उसके जो बीवी बच्चे हैं उनमें से कोई एक आके कहता है जी कि हमें दोनों के दोनों खाली चाहिए। नहीं, दोनों के दोनों खाली नहीं मिलेंगे, एक ही उनमें से खाली मिलेगा। In case of salaried landlord, if he owns another residential building in the same area, अब ये सिर्फ यहाँ पे आप salaried landlord की बात कर रहे हैं। In the same area, tenant may not be evicted unless if exchange of building is offered. So if for example there is a salaried person and there are two buildings, he owns two buildings in the same locality, but he requires one building. So he may offer an exchange to the tenant, and a controller may fix the fair rent in such situation, and a tenant can go to this other building which belongs to the same landlord. But if the tenant refuses it in spite of the fair rent that was proposed by controller, then he will lose his right, तो फिर उसको ejectment उसकी हो जाएगी। If tenant does not vacate such building within 2 months of notice under subsection 1, the controller after summary proceedings may order the ejectment. In case of death, application after 6 months can't be accepted. So if a person has died, then his spouse or his minor children through guardian, क्योंकि minor children की जो application है वो through guardian ही होगी, वो within 6 months जो है वो प्रेजेंट करें जी। आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ डेथ जो है वो इस 13A की बेस पे आप एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। फिर इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन, एप्लीकेशन बिफोर 6 मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ रिटायरमेंट कांट बी एक्सेप्टेड। यानी कि अगर एक शख्स जो है वो रिटायर होने वाला है तो 6 महीने से पहले और रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद इस सेक्शन के तहत वो पर्सनल नीड के लिए भी वो नहीं कर सकेगा, तो फिर उसको सेक्शन 13 का सहारा ही लेना पड़ेगा। क्योंकि सेक्शन 13A में याद रख लें, यहाँ पे समरी प्रोसीडिंग होती है, यहाँ पे ज़्यादा जो लेंथ वाली प्रोसीडिंग नहीं होती और उस पर 2 मंथ्स के अंदर फैसला
वो कर देते होते हैं नॉर्मली. An ejectment petition application of retired employee or dead person can be maintained within 6 months after the commencement of this ordinance. So let's say कि जब ये ऑर्डिनेंस नहीं हुआ प्रोमलगेट हुआ तो उससे पहले अगर कोई शख्स फोत हो गया या कोई वो रिटायर इस तरह से हो गया तो इस ऑर्डिनेंस के प्रोमलगेट होने के 6 महीने के अंदर अंदर वो जो है केस कर सकते थे. A service of notice to tenant even in summary proceeding is mandatory क्योंकि ये natural justice का तकाजा है. It is according to natural justice. In all of the above mentioned cases, if possessed building is re-let to some other tenant, a fine of 5,000 rupees may be imposed, or if benefit acquired by the landlord is greater than such fine, then annual rent of building has to be imposed as a fine. So, for example, if under section 13A, a building has been vacated बाय द टेनेंट थ्रू कंट्रोलर, लेकिन आप पे तो उधर ये शौक है कि भी मुझे पर्सनल नीड थी इसकी, बट यू हैव बट इंस्टेड यू इंस्टेड के आप वहाँ पे खुद रहें, आपने वो किसी और को जो है वो सबलेट कर दी. तो इस सूरत में आपको आप 5,000 रुपया जुर्माना हो सकता है. अगर 5,000 से ज़्यादा आपने कमाया है तो आप पर उतना जुर्माना होगा जितने पे वो रेंट पे लगी है बिल्डिंग, और उसका जो साल का पूरा किराया है वो आप पे जुर्माना होगा. नोटिस विल बी इशूड बाय गार्डियन इन केस ऑफ माइनर, जैसा कि हम सेक्शन 13B. दिस इज अ वेरी स्पेशल सेक्शन ऑल्सो. Where ownership of a rented building or land is transferred from one person to another by any means such as inheritance, gift, sale or otherwise, it is duty for the new owner to inform the sitting tenant against such transfer and for the regular payment of the rent to him. So for example, if ownership has been changed while tenancy was in continuous, तो उस वक्त फिर क्या होगा, उस वक्त जो नया जो ऑनर बनता है वो उसी टेनेंट को वो नोटिस भेजता है कि आप अब मैं ऑनर बन गया तो अब आपने किराया मुझे देना. ऑफ कोर्स वो साथ अपने वो रजिस्ट्री की कॉपीज़ और ये वो लगा के भेजेगा, उसको रिटर्न में वो भेजेगा. ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि मोड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेल में की सूरत में होना चाहिए, वैसे बाय हैंड नहीं होता ये. फिर लॉ प्रिस्क्राइब्स मैक्सिमम 30 डेज टाइम कि जब आपको पता चल जाता है ऑनरशिप आपने, यानी कि मैं अगर लैंडलॉर्ड हूँ, मैंने अभी एक प्रॉपर्टी ली है, तो जो टेनेंट वहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ है मैं उसको नोटिस भेजूंगा, तो विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग दैट नोटिस टेनेंट का काम है कि वो पैसे अब जो रेंट है वो मुझे देना शुरू कर दे. अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका जब ऑनरशिप चेंज होती है तो अगर आप नोटिस देते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि फ्रॉड का जो एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाता है. प्रोटेक्शन ऑफ आपका जो प्रोटेक्शन है, राइट है, वो प्रोटेक्ट है. न्यू ऑनर और पोजेसर जो है इनका पता चलता है. सिटिंग जो टेनेंट है उसको भी जो है वो एक मौका मिलता है, उसको भी इंफॉर्मेशन होती है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उसमें जो न्यू ऑनर की और सिटिंग टेनेंट की है वो इम्प्रूव होती है. आपस के झगड़े नहीं होते, हारमोनियल इफेक्ट्स हैं उसके, लविंग रिलेशनशिप बिटवीन टेनेंट एंड द न्यू ऑनर, क्योंकि ऑनरशिप चेंज होगी ना. यानी ये 13B बेसिकली उस वक्त इस्तेमाल होती है जब ऑनरशिप चेंज होती है लेकिन टेनेंट वही रहता है. और ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि आप जो अगर वो ऑनरशिप चेंज हुई है तो ऑनर का काम है, न्यू ऑनर का, कि वो नए टेनेंट को बताए कि अब ऑनरशिप चेंज हो गई है, अब मैं मालिक हूँ. सो ये एक बड़ी आसान सी ये प्रेजेंटेशन थी, और इफ़ यू स्टिल हैव एनी मोर क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.